تو پبلک اسکول تھا وہ، وہاں پہ مشتاق احمد ویری صاحب استاد بھی تھے. پھر 4 بجے یا صبح سویرے ہم ان کے پاس قرآن بھی پڑھنے جاتے تھے. تو ایک منفرد شخصیت ہے مشتاق احمد ویری صاحب، ان سے بڑے انسپائر تھے آپ، ان سے بڑے انسپائر تھے ہم پہلے سے ہی. اللہ نے ان کے کلام میں ایک تاثیر رکھی تھی، ایک جادو سا رکھا تھا، ایک اثر رکھا تھا. تو بس وہ انسپائریشن تھی ہماری، ان سے بڑے متاثر ہوئے. پھر وہ ویری میں جمعہ پڑھاتے تھے، تو اولاً میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا. میں ان کے پاس جمعہ پڑھنے جاتا تھا، چھوٹے ہی تھے ہم، تقریباً کلاس UKG فرسٹ، یہی شاید زندگی کے یہی لمحات تھے. تو ان کے پاس جاتے تھے، پڑھتے تھے، تو بڑے انسپائر ہوتے تھے ان کی باتوں سے. تو یہ ایک وجہ بنی. اسی زمانے میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھیں، مشتاق احمد ویری صاحب کی کوئی ایسی خاص بات جو آپ کے ساتھ کوئی یاد ہو، ایسا کوئی لمحہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں؟ ویری صاحب کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لمحات ہیں جو جنہوں نے نقوش چھوڑے ہیں میرے دل پہ، میرے قلب و ذہن پہ. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اصل میں ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا، درسگاہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کا وہ پیار، ان کی وہ ڈانٹ، کتنی باتیں ہم ذکر کریں. تو مجھے یاد ہے ایک بار ان کا جمعہ تھا بجبارہ کے ایک علاقے میں، شالٹنگ جس کا نام ہے، غالباً وہی علاقہ تھا. تو میں اسکول میں پڑھتا تھا. ویری صاحب وہاں پہ استاد بھی تھے، تو انہوں نے کہا میرا آج جمعہ آپ آئیں گے؟ میں نے کہا اب مولوی صاحب آپ جا رہے ہیں تو، لیکن ابھی میں اسکول میں ہوں. کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ چلے. تو میں ان کے ساتھ گیا. مجھے آج بھی یاد ہے، گاڑی نہیں تھی ان دنوں، تو ہم چلے گئے وہاں. ایک وہ بس ٹائپ کی ہوتی تھی، وہ ٹاٹا گاڑی وغیرہ، وہ 407 میں ہم وہاں چلے گئے. تو آگے سے گاڑی نہیں ملی، پھر ہم ٹانگے پہ چلے گئے. راستے میں ہم ٹانگے پہ چلے گئے. وہاں سے ہم دوسری جگہ سے نکلے تو پیدل سفر کرنا پڑا. بہت سارے بڑے مشقتوں کے ساتھ آپ پہنچے. دین کا سفر ہی مشقتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بات تو صحیح ہے. جب دین کے لے کر دین کا سفر مشقتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دین پڑھنا، دین پہ عمل کرنا، دین سیکھنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. دین کے لیے محنت کرنی، لیکن انسپائر تو انہی سے ہو. جی مشتاق احمد ویری صاحب سے. جی اس کے علاوہ سبوں کو معلوم ہی ہے کہ آپ خود وابستہ ہیں ٹور ایز اے ٹور ٹریول ایجنسی سے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے. کہ اس کے ضمن میں ہمیں کئی سوالات موصول ہوئی، اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو مدعو کیا. تو صافی توقیر صاحب نے کہا تھا کہ نہیں مبشر صاحب جو ہے وہ اس کے لیے ون آف دی بیسٹ ہے جو کہ اس کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں. اصل میں اب کشمیر میں ایجنسیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ٹور آپریٹر جو کہ ٹور کا کام کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سروس بیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، کم سے کم ریٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہر کوئی ٹور اینڈ ٹریول کی ایجنسی کھول رہا ہے اور ہر کسی کو کہتے ہیں نہیں یہ اب خدمت خلق ہے، ہم کر رہے ہیں اور ہم لے جا رہے ہیں حرمین شریف ہے. تو اس کے پیچھے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں، آپ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. ون آف دا بیسٹ میں نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے، میں کوشش کرتا ہوں. تو رہی بات آپ کے سوال کی، تو یہ ایک اچھا سوال آپ نے کیا. کشمیر میں اب ٹور آپریٹرز بہت زیادہ نا تعداد میں بڑھ گئے ہیں. جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے ٹریول ایجنسیز قائم کی گئی ہیں. تو میرا جہاں تک اس میں ماننا ہے نا، یہاں پہ ٹریول ایجنسیز جو ہے نا، اور جو جانے والا ہوتا ہے، یعنی کسٹمر اور ٹریول ایجنٹ، ان کے بیچ مسائل تب بنتے ہیں جب بات واضح نہیں ہوتی. اچھا، جو جانے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنی باتیں اور اپنی ضروریات وغیرہ، وہ ساری باتیں وہ ٹریول ایجنٹ کو پہلے بتاتا نہیں. صحیح. سپوز ایک بندہ 1 لاکھ روپے دے کے 5 اسٹار فیسلٹیز ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو پاسبل نہیں. صحیح بات. آپ اپنی توقعات اور اپنی ضروریات سب سے پہلے ٹریول ایجنٹ کو بتائے کہ میری یہ ضروریات ہیں، پھر اس حساب سے آپ پیکیج لیں ان کا. اگر آپ 1,15,000 1,20,000 کا پیکیج لیتے ہیں، جس میں تقریباً 50,000 کا تو ٹکٹ ہی پہلے چلا جاتا ہے، 10-15,000 تو ویزا کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو بچتا ہے ایک چھوٹا سا رقم. اس میں 20 دنوں کو اکوموڈیشن اس کو مینٹین کرنی پڑتی ہے، اس کو کھانا آپ کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹرانسپورٹیشن آپ کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. تو پھر اس چھوٹے سے رقم کے ساتھ وہ سارا پاسبل نہیں ہوتا. اسی لیے آپ اپنی توقعات اور ضروریات سب سے پہلے ٹریول ایجنٹ کو بتائیں. اس کو کہے کہ میری ضروریات یہی ہے، میری توقعات یہی ہے، آپ بتائیں اس حوالے سے آپ کا پیکیج کیا بنے گا. صحیح.
ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, مطلب کشمیر کے لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے نا, میرے مسلمان بھائیوں کا جہاں تک تعلق ہے, میرے عزیزوں کا جہاں تک تعلق ہے, ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی جگہ پہ سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سستا کہاں پہ ملے. یہ ایک سب سے بڑا علم ہے. جب آپ سستا ڈھونڈیں گے نا تو پھر مسائل بھی بہت, سروسز وہاں پہ کم ملے گی, سروسز آپ کو کم ملیں گے, پھر آپ کو تو 5 اسٹار پیکیج نہیں ملنے والا. کچھ بڑا چڑھا کے بھی پیش کرتے ہیں نا, ایڈ کر لیتے ہیں. وہ غلط بات ہے. دیکھیے ہمیشہ آپ اپنی باتوں میں صداقت رکھیں. صحیح. آپ جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ کسٹمر کو بتائے کہ میں اس قسم کی سروس پرووائڈ کرتا ہوں. کوئی بات ڈکی چھپی نہ رکھے آپ کہ ورنہ کسٹمر نہیں آئیں گے, لوگ نہیں آئیں گے میرے ساتھ عمرہ کرنے. نہ آئے, اللہ نے جتنا رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے اس بات پہ کہ وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے, لیکن اگر اللہ نے وہ خیر آپ کے مقدر میں نہ رکھی ہو تو وہ کوئی خیر آپ کو نہیں پہنچا سکتی. اگر پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ آپ کو کوئی شر پہنچانا چاہے, اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں وہ شر نہ لکھی ہو تو پوری امت جمع ہونے کے بعد بھی آپ کو ذرا برابر شر نہیں پہنچا سکتی. بالکل صحیح. اللہ نے جو رزق مقدر میں رکھا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے. آپ چاہے بات جھوٹی بولو, اس کو امیٹیٹ آپ کرو, آپ کتنا اس میں بناوٹی باتیں بناؤ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ لانگ رن میں چلے گا بھی نہیں. اگر کوئی ایجنٹ 90,000 میں 60,000 میں کہے گا کہ میں لانگ رن میں نہیں چلنے والا, اور لانگ رن میں یہ بزنس آپ کا جو ہے نا وہ آگے نہیں جائے گا اور یہ کامیاب نہیں رہے گا لانگ رن. اور واحد صاحب آپ سے یہ بھی پوچھیں گے ہم کہ لوگ کچھ اس سے بزنس کے ماڈل سے بھی دیکھتے ہیں, کیا اس کو بزنس کے نظریے سے دیکھنا چاہیے؟ کاروبار ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تو تجارت ہے, لیکن تجارت سے پہلے یہ عبادت ہے. کیونکہ آپ اتنا بڑا سفر کسی کو دے رہے ہیں, دیدار کر رہے ہیں, ایک مقدس سفر پہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آپ لوگوں کو لے جا رہے ہیں, آپ مدینہ طیبہ کے لیے لوگوں کو لے جا رہے ہیں. صحیح. تو عبادت ہے پہلے, آپ عبادت کا پہلو سب سے پہلے ملحوظ نظر رکھیں. رہی بات پھر کاروبار کے, اللہ برکت خود دے گا. صحیح بات. اللہ بات ہونی چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ. اور عام لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ امانتدار تاجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے ساتھ ہوگا. جی. عام لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ایسے ٹور آپریٹر کی شکنجے میں پھنسنے چاہیے, 90,000 95,000 بولتے ہیں ہم آپ کو ٹور کریں گے, کہ آپ نہیں لگتا کہ وہ پھر سروس اچھی پرووائڈ کر پا رہے ہیں؟ آن دا بیسس آف مائی ایکسپیرینس میں یہ بات کر رہا ہوں, اور مجھے 10 سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس کام میں. جی صحیح. تو میں اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے بول رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ میں بھی آپ کو فیسلٹیز اچھی نہیں ملیں گی. بالکل صحیح. پاسبل نہیں ہے. جی بالکل. جب 50,000 کا ٹکٹ ہی جاتا ہے, جب 10-15,000 ویزا کے ساتھ خرچ ہوتے ہیں, تو پھر 40,000 میں 19 دن آپ کو اکوموڈیٹ کرنا, 19 دن آپ کے لیے 3 وقت کا کھانا مہیا کرنا, ٹرانسپورٹیشن آپ کو پرووائڈ کرنا, ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ لوکیشنز پہ آپ کو لے جانا, پاسبل نہیں ہے اتنے چھوٹے سے رقم. بالکل ممکن نہیں. یہ لوگوں کو بھی ہم یہی بتانا چاہیں گے کہ لوگ ان ایسے لوگوں کے شکنجے میں نہ پڑے, کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے 90,000 95,000 اور آپ سستے کے یعنی وہ پیچھے چلے بات وہاں پہ کچھ ملتی ہی نہیں. یہ ہماری پرابلم, ہماری میں ایک مصیبت ہے نا, سستے سے سستا نہیں کرتے ہیں. ہم اصل میں کیا کرتے ہیں, ہماری بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سستا ڈھونڈتے ہیں. جی بات صحیح. سستا ہمیشہ پھر مہنگا پڑتا ہے. جی بات صحیح. سستا جب آپ ڈھونڈیں گے نا تو پھر سروسز بھی آپ کو ویسے ہی ملیں گے. اجنبی شہر ہے, کبھی آپ گئے نہیں ہیں وہاں پہ, پھر انسان در بدر ہو جائے. بہتر ہے کہ آپ 5,000 زیادہ خرچ کریں. بالکل. آپ 10,000 زیادہ خرچ کریں. میں اکثر اپنے حاجیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کپڑا یہاں سے نہ خرید کے لے جائیں, آپ کو اس سے برانڈیڈ کپڑا کشمیر میں ملے گا. بالکل صحیح. آپ کوئی شاپنگ وغیرہ یہاں نہ کریں. وہاں پہ جو بھی شاپنگ ہوتی ہے وہ سارا میڈ ان چائنا, وہ سارا میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان پورا کا پورا باہر سے آیا ہوا مٹیریل ہوتا ہے. میں نے خود میڈ ان کر کے دیکھا, سارا باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, پچھلے سال لاسٹ ایئر میں اصل میں ایک شاپ پہ چلا گیا. اچھا, وہیں پہ؟ جی مکہ میں. تو میرے کچھ ساتھی میرے ساتھ ہیں, انہیں سردی بہت لگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اب واپس کشمیر جانا ہے تو سردی بہت زیادہ, ہم کچھ جیکٹ خریدیں گے, گرم جیکٹ خریدیں گے. میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم حرم کے قریب دکانوں سے کچھ خریدیں گے تو مہنگا پڑے گا, ہم عزیزیہ جاتے ہیں. میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا, عزیزیہ ہم چلے گئے. وہاں پہ ہم ایک مارکیٹ میں گئے, وہاں سے کچھ جیکٹ ہم نے خریدے. تو 100 ریال کا ان کو وہ جیکٹ ملا. تو پھر میں واللہ کہتا ہوں آپ کو, کچھ میں نے چیزیں وہاں پہ دیکھی. سپوز میں نے شال دیکھا,
कुछ वो जैकेट्स वगैरह हमने वो वास्कट टाइप के मैंने देखे. मैंने उनको कहा कि ये कहाँ के है, कहा ये कश्मीर से है. मैं बड़ा खुश हुआ. फिर मैंने उनको कहा कि हम कश्मीर से ही है. कहा ये बड़ा महंगा होता है, वहाँ के शाल बड़े महंगे होते हैं. वहाँ पे पूरी दुनिया से मटेरियल आता है. ये सच है. टर्की से आता है, चाइना से आता है, जापान से आता है, यूएसए से आता है, हर जगह से मटेरियल. इंडिया से बहुत जो परफ्यूम हम वहाँ पे खरीदते हैं ना, इंडिया तो परफ्यूम का हब है. सही. सारा परफ्यूम यहाँ से जाता है. ये सच. पूरा परफ्यूम इंडिया से ही जाता है. लोग कुछ यहाँ से नियत कर लेते शॉपिंग का भी, वहाँ से शॉपिंग करके वही मसला है. इसमें अब रियाकारी भी दाखिल होगी ना बहुत जी, कि वहाँ से चीजें लाएंगे. हमसाया किसी का रिश्तेदार चला गया, अब वो उनको नीचा दिखाने के वास्ते अब ये गया तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा. और वहाँ के इबादत का जो पहलू है वो मफकूद है. सही बात, मफकूद है. नहीं, लोगों को ये इबादत का पहलू होता भी नहीं है. दूसरी बात ये है कि फिर वहाँ पे कहते हैं तबरुक, वहाँ की चीज वो लाएंगे. वहाँ का शॉल हमें मिला इंडिया का, ये लाएंगे यहाँ पे मेड इन इंडिया लाकर यहाँ पे तबरुक बना के. असल में कश्मीर में तबरुक वगैरह, ये शरीफ तबरुक वगैरह, ये इस्तिलाहत जो है ये जुबानी ज़्यादा है यहाँ पे, ये चीज तबरुक बन जाती है. एक तंज होता है टूर ऑपरेटर्स पे, खासकर पूछते भी हैं लोग जो खासकर इल्म या फहम रखते हैं. वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उन्होंने जिंदगी में अगर सफर किया उम्रे का, तो उम्रा एक ही किया, एक ही उम्रा किया. यहाँ से टूर ऑपरेटर्स ले जाते हैं 4-4 5-5 उम्रे करवाते हैं. बल्कि मेरे साथ में अपना एक बात है आपको सुना दूं. जिस टूर ऑपरेटर के साथ मैं खुद गया, तो हमें पहले ही दिन जैसे ही गए तो हमने एहराम बांध दिया था दिल्ली से, तो हमने पहले उम्रा किया. दूसरे दिन अभी हम सोए नहीं थे, हमें फिर से जगह गया और हमें पहुंचा दिया गया जोराना, मस्जिद जोराना. और हमने एक बार हलक किया था. अब हलक के ऊपर कौन सा प्लेट, हम हलक के ऊपर ये मसला है. तो वहाँ पे बहुत सारे वो लोग आए हमारे साथ. एक हमारे साथ मौलवी साहब भी था, सल्फिया का था, 8 साल सल्फिया पढ़ा था. तो मेरे पास आए तो मौलवी साहब ये क्या तमाशा. मैंने कहा मुझे क्या मालूम. इनको जरूरी था कि दूसरे दिन हमारा उम्रा कराना. थोड़ा सा हमें भी टाइम दे देते 1-2 दिन बाद, ताकि हम भी थोड़े से थकान वाला सफर था. तो उनको किसी तरीके से अपने सर से दूसरा उम्रा उतारवाना था, क्योंकि उन्होंने पहले से कैटलॉग में लिखा था कि हम 4 या 5 उम्रे आपके करवाएंगे, मस्जिद आयशा से, जोराना से, ताइफ से. ये क्या तमाशा है. ये तमाशा है सच में. लोगों ने, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये लोग जो है ना अपने कारोबार की बुनियाद झूठ पे ये सारी बुनियाद होती है. हम 6 उम्रा कराएंगे, सब कैसे मुमकिन. उम्रे में कुछ चीजें लाजमी देखी जाती है, यानी जिस्मानी इस्तिताअत को लाजमी देखा जाए, जिस्मानी कुव्वत भी है कि नहीं. जब हम पहला उम्रा करते हैं तो 4-5 दिन तो इंसान, ये सही बात, बिल्कुल इतनी ज्यादा थकावट महसूस करता है कि चल नहीं पाता. ये सच. अब क्या है, उम्रा ऑपरेटर्स को जो है ना, इनको अपने कारोबार को बड़ा चढ़ा के पेश करना है. लो जी हमने इनको 7 उम्रे करवाए. भाई कैसे मुमकिन है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में 1 उम्रा करते थे. जायद उम्र से तो रोका नहीं. अब अगर आप जायद उम्रा करेंगे, चलिए आप 20 दिनों के लिए जा रहे हैं, आप 2 उम्रे करेंगे, लेकिन कम से कम आप थोड़ा सा गैप ले, जिस्मानी ताकत को भी देखे, उसको भी मलहूज रखे कि 10-15 दिनों के बाद जब कुव्वत आप में बाकी होगी फिर आप दूसरा उम्रा करेंगे, तो चलिए ठीक है. फुक़हा इसकी इजाजत देते हैं, उलमा इसकी इजाजत देते हैं, रोका तो नहीं गया इन चीजों से. लेकिन मसला ये है कि आप सही कर सकते हैं, आप तवाफ कर सकते हैं, तो आप जो उम्रे के बाद आने वो अच्छे से अदा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सारा मसला देखा जाता है. जी सर. अब यहाँ की जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे यहाँ के हैं, वो पहले से ही अपने कैटलॉग में लिख के रखते हैं कि हम उनको 4 उम्रा 5 उम्रा करवाएंगे. फिर वो बोझ अपना सर से उतार दे. ये सही बात है. जोराना ले जाए, मस्जिद आयशा ले जाए. मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं एक बुजुर्ग से मिला. अच्छा. तो बेचारा वो चल नहीं पा रहा था, बड़ी स्वेलिंग हो गई थी उसके पाँव में. मेरे पास बैठा था तो मैंने कहा चचा मुझे लगता आप बीमार हो. कहा मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ. मैंने कहा क्यों, क्या मसला क्या है. कहा कि हमारा जो ट्रैवल ऑपरेटर था उसने हमें तकरीबन 4 कि 5 उम्रे करवाए पैदल पे. हाँ पैदल पे. मैंने कहा अल्लाह पे रहम करे, तो ये कैसे मुमकिन है. कहा कि एक तो जोराना से करवा, 2 तो मस्जिद आयशा से, फिर ताइफ ले गए. वो तो मतलब सबसे पहले वो मीकात का तो अब वो तस्वुर रहा ही नहीं कि शायद इसके लिए मीकात भी कोई शर्त है. तो अब ये बाहर ले जाते हैं, मुझे लगता है अब करीब ये मस्जिद जिन तक ले जाएंगे, आप एहराम बांधे और उम्रा करें. ये असल में ये आपने जो फरमाया ये बात बड़े दिल पे लगी मेरे, क्योंकि ये इसको एज अ बिजनेस मॉडल देखते हैं. इन्नमल आमालु बिन्नियात का कांसेप्ट होना चाहिए. मैं आपकी बात काट के अर्ज करना चाहूंगा, इसमें हमारी भी खता है.
खता हमारी ये है कि हम जब भी उम्र का इरादा बनाते हैं, जब भी हम उम्रे पे जाने का इरादा बनाते, इसकी नीयत कर लेते हैं, आपने अपना मन बना लिया, सबसे पहले मन बनाने के बाद आप इंतखाब किसका कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस बंदे के साथ, आप किस बंदे के हमरा जा रहे हैं, क्या वो बंदा सबसे पहले इस इबादत को जानता है, सही, वो इबादत की शराइत से, इबादत के अरकान से, ये इन सारी चीजों से वाकिफ खुद है कि नहीं, जी जी जी, वो मसला। इसी ज़मन में एक बड़ा जरूरी सवाल है, जब भी कोई ग्रुप जाए उसके साथ जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा जाए, तजुर्बे वाला। मेरे हिसाब से अगर कोई आलिम जाए, माशाल्लाह आप इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं, वाइज भी है, खतीब भी है और दीनी फहम रखते हैं, अगर आप खुद जाएं, आप तो हर एक उम्र के साथ जा नहीं सकते, बाकी ग्रुप जो आपके बनते हैं उसके लिए क्या आप करते हैं? देखिए हम क्या करते हैं उसके लिए, हम सबसे पहले बंदों का सही इंतखाब करते हैं, सही, जो गाइड हो हमारा। दो चीजें उसमें लाजमी, एक तो इल्म, एक तो तजुर्बा। सही, इल्म और तजुर्बा दोनों चीजें लाजमी मलज़ूम है। सही, हम सबसे पहले उन रहबरों का, उन गाइडों का हम इंतखाब करते हैं, सही, जो दोनों में माहिर हो, बिल्कुल सही, जो दोनों में महारत रखते हो, जिनके पास तजुर्बा भी हो सफर का, जिनके पास इल्म भी हो, क्योंकि इल्म बगैर तजुर्बे के तो काम आएगा नहीं आपके। तजुर्बा और इल्म दोनों चीजें जरूरी है इसमें, अव्वलन इल्म, बाद उसके तजुर्बा दोनों होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम लिमिटेड ग्रुप्स रखते हैं। मैं अपनी बात करूं, मुझे पूरे सीजन में लिमिटेड ग्रुप्स ही होते हैं, हम लिमिटेड काम करते हैं, फिक्स्ड डेट्स। आप यकीन माने, मैंने जनवरी जो अभी कमिंग जनवरी है 2025 का, उसमें मेरा एक ग्रुप था 40 बंदों का। अच्छा, मैंने अवॉइड किया, वो एक कंपनी का ग्रुप था, मैंने वो अवॉइड किया। तो अवॉइड क्यों किया, जो ऑफिस में हमारे लड़के बैठे हैं तो उन्होंने कहा सर आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मैं अवॉइड नहीं करता, ठीक है मैं इसमें पैसे कमाता, वो पहलू भी मेरे सामने था, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास प्रॉपर गाइड नहीं है। अच्छा, गाइड की वजह से मेरे पास प्रॉपर गाइड नहीं है, क्योंकि मैं खुद मैं तो नहीं जा सकता, मेरी वजह से इनको धोखा हो जाएगा, ये इबादत का मसला है। और कुछ लोग आपको नजर देख के ही आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं तो रकम कमाऊंगा इसमें, लेकिन कल को मुझे अल्लाह को जवाब दे, ये मसला यही बात। इसलिए बार बार सुहाबा जब मिलते थे वो तकवा के बारे में बहुत ज्यादा कहते थे ना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। सही, मैंने कहा नहीं, मसला ये नहीं कि मैं 1 लाख 1.5 लाख इसमें कमाऊंगा, मसला ये है कि मुझे कल अल्लाह को जवाब दे। मेरे पास गाइड प्रॉपर अवेलेबल है नहीं इस ग्रुप के लिए, क्योंकि मेरे पास जितने भी गाइड है वो सारे जनवरी में जो हमारे ग्रुप है उनके साथ होंगे। ये एक जायद ग्रुप आ रहा है, इसमें कोई मेरे पास गाइड है ही नहीं जी, तो इसलिए मैंने उनसे माफी तलब की, मैंने माजरत तलब की, मैंने कहा मैं तो नहीं ले जा सकता। ऐसे एक ग्रुप से हमारी मुलाकात हुई मक्का में, वहां पे 3-4 हुज्जाज किराम मुझसे गायब हो गए। जब ग्रुप गाइड हमने तलाशा खुद ही, तो वहां पे देखा कि वो होटल में बैठा है, मजे से आराम फरमा रहा। हमने कहा क्यों, बोला आएंगे, खुद ही तजुर्बाकार है। बोला हुज्जाज वो बहुत बार आ चुके हैं, हमारे हाजी बहुत बार आ चुके हैं, इनका पहला उम्रा नहीं है। और वो बेचारा मक्का जो है बहुत बड़ा शहर है, इसमें इंसान एक तरफ अगर निकल गया तो निकल गया। हमारे कश्मीर के हाजियों को बेचारों को तजुर्बा भी नहीं है, सीधे साधे, अगर 2 बार भी जाए तभी तजुर्बा नहीं आएगा। मस्जिद हरम बहुत बड़ा है, मस्जिद हरम तो बहुत बड़ा है, इनको सफर का तजुर्बा भी नहीं हो, बाहर निकले भी नहीं हो। सही, तो इस हवाले से हमें बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही, इस ज़माने में आप जो बंदा इनके साथ जाए ना, वो इंसान हमदर्द होना चाहिए। ये बात बड़ी बात है, वो इंसान हमदर्द होना चाहिए। वो इसको इस नजरिए से ना देखे, इस जाविये से ना देखे कि बस ये मेरा कारोबार है, वो इस जाविये से देखे कि इन बुजुर्गों की खिदमत मेरे लिए बात है। सही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन माओं को साथ में लेके चलना ये मेरे लिए इबादत है, इस पे अल्लाह और मजीद अजर देगा उसको इंशाअल्लाह जी। और मोहतरम मैं आपसे ये बात कहूँ कि ज्यादातर उम्र रसीदा लोग जाते हैं, औरतें जो होती है वो हमारे खासकर उम्र रसीदा होती हैं, जो मर्द हज़रात वो उम्र रसीदा होते हैं। तो कम से कम टूर ऑपरेटर को या गाइड को कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि ये मेरे जिम्मे में है, कल इसका जवाब दही देनी है। तो ये इसमें मैं आपकी बात आगे पहुंचाना चाहूंगा अपने सामईन और नाज़रीन को कि कम से कम टूर ऑपरेटर्स अपने लिए ऐसे चुने जिनका कम से कम तजुर्बा सही हो और जिनका कम से कम जो इस चीज को जानते हो और कई सालों से ये काम करते हो। 5,000-6,000 के लिए आप ये ना सोचे, बड़ी इबादत करने के लिए जा रहे हैं, 5-6,000 अगर जायद में खर्च हो जाए इसमें कोई मसला नहीं है। यकीन माने कुछ लोग आजकल जो है ना, कुछ एजेंट्स आजकल काम करते हैं, वो सिर्फ 1,000 रुपया कमाते हैं इसमें भी दरमियान
اچھا मतलब इतना रेट डाउनग्रेड हो चुका है, इतना रेट वो डाउन कर देते हैं मार्केट। 1000 रुपया सिर्फ वो कमाते हैं और 1000 रुपये पे वो हाजी को किसी और के हवाले कर देते हैं। अच्छा। हाजी भी मजे ले रहा होता है तब तक कि मुझे सस्ता पैकेज मिला, फिर बाद में उसके साथ जो इश्यूज होते हैं ना, तब वो यहाँ पे आके हमें वही शिकायतें मौसूल हुई ना मोहतरम साहब की। मसला ये है कि यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ी शिकायत मौसूल इसके बाद एक और हुई। हालिया में हमें एक बहन ने फोन किया, तो कुछ यहाँ पे तुजार है, वो यहाँ पे फ्री उम्रा टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी एक बहन को वो टिकट मिला, जब मिला तो हमसे उसके बारे में पूछा गया कि क्या हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कोई महरम नहीं है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सफर तो महरम के साथ लाजमी है। अब कुछ इसमें जो आरा पेश करते हैं ना जी, जो कि अब सऊदिया में वो कवानीन भी, वो कानून भी है वहाँ का अच्छा। कि अगर किसी खातून की उम्र 45 साल से ज्यादा है तो वो किसी ऐसे ग्रुप के साथ सफर कर सकती है जो भरोसा करने के लायक हो, सही, भरोसामंद हो, जिसके साथ आप खुद को सेफ महसूस करें। 45 साल की उम्र की। लेकिन अगर शरीयत की बात करें तो सफर में हज या उम्रे पे जब आप जा रहे हो तो महरम का साथ होना लाजमी है, क्योंकि दूर का सफर है। दूर का सफर है। और ये तुजार के बारे में आप क्या कहते हैं जो कि फ्री वीजा या उम्रा टिकट प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये पैसा जो इस पे खर्च होता है ना, ये आता कहाँ से है। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, वो इसके हवाले से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अच्छा, सही। कुछ तुजार जो है वो बूस्ट देने के लिए, उसके लिए वो इस पे तिजारत करते हैं। और बहुत सारे जो है ना वो इसमें स्पॉन्सर्स भी लाते हैं कि हम किसी को भेज रहे, आप स्पॉन्सर इसमें करोगे, आपकी स्पॉन्सरशिप कितनी होगी इसमें। तो देखना ये है कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो पैसा इस टिकट और इस वीजे के लिए आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, सही, वो इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी हदीयतन आप किसी को अपनी तरफ से भेजो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई तुजार भेज, कोई ताजिर आपको भेज रहा है, कोई कारोबारी आपको भेज रहा है, वो अगर भेज रहा है, सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि जिन पैसों से वो भेज रहा है वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो हलाल के हैं, हलाल के हराम के हैं। सबसे पहले ये देखना उसमें जरूरी, और ये देखना उसमें लाजमी है कि अगर वो स्पॉन्सरशिप ले रहा है किसी से, जी, किसी का बिजनेस प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा इसमें कुछ मीडिया वाले भी इन्वॉल्व है, या कुछ फेसबुक पेज चलाने वाले, या यूट्यूब चलाने वाले, सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है, ये जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, वो अक्सर ये अनाउंस करते हैं कि हम फ्री उम्रा करवाएंगे। फिर वो मुख्तलिफ इदारों से, तिजारती इदारों से वो पैसे लेते हैं उसके लिए कि आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी वगैरह, वो ये सब आपका नाम आएगा, वो जैसे स्पॉन्सरशिप होती है, वो स्पॉन्सर्स लाते हैं। सबसे पहले ये देखना लाजमी है कि जो स्पॉन्सरशिप आ रही है, जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, उनका पैसा किस तिजारत से आ रहा है। अच्छा, वो मसला है। अब ये जो उम्रा के लिए जाएगी, मिसाल जो बहन ने हमें फोन किया, अभी अकेले, ये तो गई भी अकेले, इसने फिर माना नहीं, हमने मौलवी साहिबान से राब्ता किया अभी, फिर ये मानते नहीं, आम लोग नहीं मानते, फ्री की चीज आ रही है तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इसमें जो टूर ऑपरेटर इसको ले जा रहा है, क्या उसके जिम्मे पे ये यानी फर्ज नहीं था कि उसको बोलना, ये बात लाजिम है कि वो उसको सबसे पहले बताए, और बल्कि मना ही करे, वो मना करे इस चीज से। हमारे पास भी आते हैं जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे पास नहीं आते। अच्छा, आपको भी कुलू कौलन सदीदा, हमारे पास आते हैं। तो अब हमारी पॉलिसी वाज़ेह होती है समाज से। सपोज लास्ट टाइम मेरे पास एक बहन आई तो उसने ऐसा कहा कि वो डिवोर्स ही थी शायद, तो उसने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा कि आप एक काम करें, भाई को साथ ले जाए। कहा वो बाहर है। मैंने कहा भाई को, बाप को साथ ले जाए। कहा वो तो माजूर है, चल नहीं पा रहा है, बीमार वगैरह है। मैंने कहा मेरी बहन ऐसे बगैर महरम के नहीं हो सकता, आपके लिए मसाइल हो जाएंगे। कौलन सदीदा की बात बिल्कुल सही है आपकी। टूर ऑपरेटर्स के लिए आप क्या नसीहत चाहेंगे इस बारे में? इस कारोबार के हवाले से, इस तिजारत के हवाले से सबसे पहले आप ये मलहूज़ नजर रखिए कि इबादत है, आप इबादत में इनको ले जा रहे हो, इनकी खिदमत इबादत, इनके साथ हमदर्दी से पेश आना इबादत, क्योंकि ये मुअत्तमिरीन जो होते हैं ना, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह के मेहमानों की कदर, इनका एहतराम, ये इबादत है, ठीक है ना। सबसे पहले ये चीज आप जहन में रखें कि मैं जिनको साथ ले जा रहा हूँ, ये इबादत की गरज से, मैं इबादत की गरज से, सवाब की नीयत से आप मैं उनको ले जा रहा हूँ, इस पे अजर अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये चीज वो जहन में रखें, नंबर 1। नंबर 2,
कारोबार के उसूल वो वाज़ेह करें, सही, जिनको वो ले जा रहा है उनके साथ टर्म्स कंडीशंस वाज़ेह रखें और अपनी तिजारत में बात साफ, अमानत होटल इतना दूर है, खाना इतनी बार है, लॉन्ड्री इतनी बार है, सारा क्लियर होना। मुझे बहुत सारे हाजी जब मेरे पास आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें किसी ने कहा मक्का में आपको 400 मीटर की दूरी पे होटल मिलेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे से ये तो पॉसिबल है नहीं। वो कहते हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ हरम का फासला देखूं, यानी काबा से बराबर बाहर 400 मीटर तो वो बनता है, फिर आपको इसमें कौन होटल देगा? मुझे हरम ही 400 मीटर से हो जाता, पॉसिबल नहीं है, ये बात सच है, ये मुमकिन नहीं है। मैं उनको कहता हूँ 750, 700, 750, 800 मीटर तक आपको होटल मिलेगा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टर्म्स कंडीशंस वाज़ेह होनी चाहिए। आप अपनी तिजारत में अमानतदारी रखें, बिल्कुल सही, और सच्चाई रखें। ये बात सही, क्योंकि मैंने जो अभी कुरान की आयत तिलावत की ना, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह आपके अमाल को दुरुस्त कर देगा, अल्लाह आपके काम को दुरुस्त करेगा जी। जब आप कौल अपना सच्चा रखते हो ना, तो काम आपका दुरुस्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही। कश्मीर में बहुत सारे टूर ऑपरेटर जो है ना, काम बड़ी ईमानदारी के ईमानदार नहीं, इसमें कोई शक, बहुत ईमानदारी के जी। तो इसलिए आपने जो फरमाया वो फिर से मैं एक बार रीआइटरेट करूं अपने सामीन और नाज़रीन के लिए कि टूर ऑपरेटर का इंतखाब करना इसमें ये उनके जिम्मे पे है, बहुत 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 इसमें हसास रहने की जरूरत। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने आपको 5000 कम दे दिया और आप उठ के चले गए उनके पास। बिल्कुल सही। इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसके साथ जा रहे हैं और उसका कितना टाइम हुआ है। मैं कश्मीर में ऐसे बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स को जानता हूँ, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स को जानता हूँ जो काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, उनकी टर्म्स कंडीशंस वाज़ेह होते हैं। और कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबूहु, बिल्कुल उसे लिख के ले सूरह बकरा। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। आप अपना एक फॉर्मेट बनाएं, जी जी, उसमें बातरतीब सारा कुछ आप लिखिए। जी जी, कि मक्का में हम इतने दिन रहेंगे, होटल ये रहेगा, मदीना में इतने दिन रहेंगे, होटल ये रहेगा, मक्का में कहाँ जाना है ये वाज़ेह करके रखें। बिल्कुल सही। फिर उस पे हाजी का साइन ले ले, मसाइल खत्म। उसको सामने बैठाना। हमारा भी मसला ये है ना, मैं अपनी बात करूं, हम ट्रैवल एजेंट्स का भी मसला ये होता है कि सारी टर्म्स कंडीशंस वाज़ेह नहीं होती। फिर जब अचानक से हम हाजी को कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ, तो फिर हाजी हम पे बरस पड़ते हैं। टर्म्स कंडीशंस वाज़ेह होंगी, आप अपना कागजात निकाल के उसको दिखाएं, हाजी साहब ये सारी बातें वाज़ेह हैं, हमने आपको अव्वलन ये सारी चीजें बता दी हैं। जी सही बात। जब हम भी कुछ चीजें अपने पास ही रखते हैं ना, पोशीदा रखते हैं, तो फिर अचानक से हाजी को हम कुछ कहते हैं, वो फिर मानने के लिए, वो मानने के लिए वो बड़ा कुर्ता मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात सही है ना, ये बात मैं फिर से हम सामने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करें तो उनसे जाके बैठें, आराम से बात करें। एज अ कस्टमर उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है, वो बहुत कुछ चाहता है, कम पैसों में बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बात वाज़ेह रहे ताकि बाद में कोई परेशानी वहां पे लाहक ना हो। तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारे पॉडकास्ट कम से कम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा जो लोग इस वक्त यानी इरादा कर चुके हैं उम्रा के लिए। यही वजह थी कि हमने मोहतरम मुबश्शिर साहब को बुलाया। मज़ीद मैं इसमें एक बात इजाफी बताऊं, वो ये कि वो जो उम्रा एंड हज एसोसिएशन है ना यहाँ की कश्मीर में, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, तो उनकी तरफ से भी बार बार ये बयानात आते हैं, उनके सेक्रेटरी साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ये बयानात अक्सर आते हैं कि आप सही एजेंसी का इंतखाब करें, सही अफराद का इंतखाब करें, ठीक है ना। तो कश्मीर में बहुत सारी एजेंसीज हैं, मतलब हम तो पिछले 10 सालों से या 8 सालों से काम कर रहे हैं, जो 30-40 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। श्रीनगर में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। बिल्कुल सही। असल में खराबी जो 2 साल 3 साल पहले एजेंसीज वजूद में आई ना, ये खराबी उनकी तरफ से। इसके बीच में वो जो इंटरमीडिएरी का लिंक होते हैं, वो प्रॉब्लम है सब। वो जो आपने मुझे एजेंट बना लिया है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये मेरे कैसे बीच में अगर ये चीज हट जाए ना, तो शायद डायरेक्टली अगर राब्ता आप ही से हो जाए कि जो बंदा ये काम कर रहा है। इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा मसला, हम हमेशा आसाइश ढूंढते हैं। सही। कोई बंदा आपको मिला, आप उसके सुपुर्द काम कर देते हैं, मेरा पासपोर्ट आप ले जाए वगैरह, लेकिन उसको नहीं पता होता कि आगे ये कितने मसाइल आपके लिए पैदा करेंगे। अगर आप डायरेक्टली किसी एजेंसी पे चले जाए, आप एजेंसी के ओनर के साथ बात करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें। इसमें एजेंसी एक और काम भी करती है। बशीर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एज अ टूर ऑपरेटर आप कश्मीर से टूर ऑपरेशन का काम खुद करते हैं, आपने अपने एजेंट नीचे रखे हैं, तो आपने उसके अलग रेट क्यों मुरतब किया हुआ है ताकि वो वहां से 5,000 या 10,000 अपने लिए कमा रहा है? आप डायरेक्टली अगर यानी आज तो इंटरनेट का जमाना, सोशल
सोशल मीडिया का जमाना, अब डायरेक्टली उनको क्यों नहीं टारगेट करते हैं? ये बात भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अगर हो जाए, टूर ऑपरेटर बीच में से इंटरमीडिएट खुद वहीं से हटा दे, कहीं कि मैं किसी दुकानदार को, किसी इमाम को, किसी भी यानी ये छापड़ी फरोश को, ये कमजोरियां हम में भी है। मैं अपनी बात करूं, ये कमजोरियां हम में भी है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हमारे जो काम करते हैं, लेकिन कश्मीर में जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है ना, वो ऐसा काम नहीं करती, वो डायरेक्ट कस्टमर का ही सब। इस तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे हिसाब से ज्यादा मिलेगा, ये तरीका ज्यादा रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने जी मुबशिर साहब, इसके अलावा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये बात सही है। हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही था, क्योंकि लोग जाते हैं इस खासकर ये जो विंटर्स के इस वक्त ये इरादा करते हैं, हम इंशाल्लाह मतलब इस पे कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पे खुद जाती तौर पर कर रहा हूँ, मतलब ये जो एजेंट दरमियान में ये इंटरमीडिएट जो दरमियान है, इनको हटाने की हमको, लेकिन मैं खुद इसमें फंसा हुआ हूँ। मैं अपनी बात रखूं, बात सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए। मैं खुद फोन, आज फोन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आपको फोन डायरेक्टली लगा दें कि मौलवी साहब हम जाना चाहते हैं आपके साथ, मसला खत्म। मैंने बात वाज़ेह कर दी ना। इसमें मसला ये है कि हमारे लोग जो है वो आसाइश पसंद ज्यादा है। कोई इनको मिल गया, ये पासपोर्ट उसके सुपुर्द कर देते, ये सारा काम निपटा के आ जाएगा। सही भाई, आप आधा घंटा निकाले, आप एक इबादत पे जा रहे हैं, सही बात, आप हज असगर के लिए जा रहे हैं, सही, ऑफिस में बैठे, ऑफिस में जाए, एक घंटा निकाले इस काम के लिए, डायरेक्टली उनसे बात। आप क्यों अपने पास वाले सहन को दुकान पे जा रहे हैं, मस्जिद में बैठ रहे हैं, उसके पूछ रहे हैं कि वो एजेंट का काम कर रहा है। और दूसरा टूर ऑपरेटर अगर इसको 5,000 दे रहा है, मिसाल के तौर पर 5,000 दे रहा है, 6,000 दे रहा है, 10,000 जो भी वो ले रहा है, सो वो खुद कम कर सकता है, खुद कम कर सकते हो, डायरेक्टली वही रेट प्रोवाइड कर दो उसको, ताकि वो आदमी बेचारा वो सफर जो बिल्कुल सही है, कस्टमर को और ज्यादा आसाइश मिल जाएगी, और कम से कम उसको भी दिल में रहेगा कि मैं बड़ी एजेंसी के साथ जा रहा हूँ। सही बात जी, बिल्कुल सही। ये था हमारी टूर के बारे में। कुछ एक दो सवाल हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो पूछना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपका नजर मुआशरे पे बहुत ज्यादा है। 2-3 सवाल हैं हमारे, क्योंकि मैं खुद मुअल्लिम हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और खुद कश्मीर यूनिवर्सिटी से वापसता हूँ, तो पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। खासकर हमें शिकायत ये मौसूल होते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, खासकर स्कूलों में, कॉलेजों में, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 10-12 पढ़ लेते हैं, ये भी धीमी दर्जगाहें ही हैं। अगर देखा जाए, स्कूल ही है, पढ़ाई ही वहां हो रही है, उस्ताद साहिबान वहां पे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर इखलाकियात नहीं बन रही हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं, इखलाकियात का कहीं नाम ही नहीं है, जबान चलानी नहीं आती, बात करना नहीं आता, सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। सही बात। इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, तालीम का जो महवर था ना जी, वो महवर चेंज हो गया। मरकज़ व महवर तालीम का अब सिर्फ दुनिया बन गया। अब तालीम से इखलाकियात बाहर है। तालीम से जब आप इखलाकियात को निकालेंगे, आप एक ऐसे माशरे को जन्म देंगे जिनके पास नॉलेज तो होगी, लेकिन इखलाकियात नहीं होगी। सही बात, इखलाकियात नहीं होगी। तालीम, तरबियत, ये दोनों चीजें जरूरी है। अगर आप तालीम दे रहे हो तो तरबियत साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। कुरान की जो पहली आयत या पहली वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई गार हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा, पढ़े ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस उम्मत के वही की जो इब्तिदा हुई ना, इल्म से हुई। लेकिन सिर्फ इल्म नहीं, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हम लोगों को इल्म देते हैं, लेकिन अल्लाह का तारुफ नहीं देते, दीन का तारुफ नहीं देते। यानी तालीम तो देते हैं, तरबियत नहीं देते। तालीम तो देते हैं बस दुनिया बनाने के लिए। अब तालीम का मकसद ही तो यही रह गया ना। सही। लोग पढ़ाई करते हैं किस वास्ते? उनको जॉब हासिल करनी है। अगरचे तालीम का मकसद कुछ डिफरेंट, इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सही। इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ योर एटीट्यूड। अगर आपका बिहेवियर नहीं बदलता, आपकी इखलाकियात नहीं बदलती, आपके इल्म का असर आपके जिस्म पे नहीं, आपके कल्ब इज़हान पे नहीं, आपके उठक बैठक पे नहीं, आपके तकल्लुम पे इसका कोई असर नहीं, तालीम ज़ाया है। तालीम का फायदा क्या? हमने तालीम से तरबियत को निकाल दिया। जिसे कहते हैं ना एजुकेशन में करानी ही कराई, हमने तालीम से इखलाकियात को निकाल दिया। अगरचे ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। बिल्कुल सही। ये मसला हो गया, इसलिए डिवेट हो गए हमारे नौजवान जी, हमारी नौजवान नस्ल पूरी तरह से डिवेट हो गई, क्योंकि हमने इल्म तो इनको दिया जी, लेकिन इखलाकियात नहीं दी। देखिए, स्कूल का मतलब ही होता है टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड, टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड। अब स्कूल जाके बच्चा डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, इसमें टीचर की क्या जिम्मेदारी रहेगी? टीचर्स की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, उन्हीं का तो कलीदी किरदार है, उनका तो कलीदी रोल इसमें बनता है।
मुअल्लिम जो होता है वो माशरे का अहम स्तून होता है, बिल्कुल सही, उसका एक बुनियादी किरदार होता है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को सुपुर्द कर रहे हैं उसके हवाले। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ी अमानत उसके हवाले हो रही है, कौम का मुस्तकबिल उसके हवाले हो रहा है। अब वो गैर जिम्मेदार बने तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ये मसला, बच्चे तो ये इदारों में तो बच्चे बनते हैं। इमाम बुखारी बने उसातिज़ा की वजह से, इमाम मुस्लिम बने इमाम बुखारी की वजह से। बिल्कुल सही। तो इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, इमाम इब्नुल क़य्यिम बने इमाम इब्नु तैमिया की वजह से। बिल्कुल सही। ये उसातिज़ा के तरबियत का फुकदान होता है। जी सही, ठीक है ना। तो बच्चे जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो अपने उस्ताद का आकस होते हैं। ये बिल्कुल सही, वो उस्ताद का आकस होते हैं। हमारे उसातिज़ा में ही कमजोरी है। सही बात। आप कॉलेज लेवल पे देखें, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, हम तो यूनिवर्सिटी में रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं, आप देखिए वहां पे उसातिज़ा का हाल क्या है। दीन बेजार है। आप उनको कहें नमाज पढ़े, क्या नमाज, इबादत क्या है, ये एक्सरसाइज किस वास्ते, नाऊज़ु बिल्लाह। जब उसातिज़ा ऐसी बातें कहें तो बच्चे तो इर्तिदाद की तरफ जाएंगे। बच्चे तो वो तो जा रहे हैं ना। अभी एथीज़्म अभी पीक पे है कश्मीर में। आप देखिए आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये खड़ा होगा, एथीज़्म का चैलेंज। अब एथीज़्म के चैलेंज को निपटने के लिए, क्योंकि बेसिक स्कूल लेवल से ही होगा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये उभर कर सामने आ रहा है। एथीज़्म, फेमिनिज्म वगैरह, जी सही, ये बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। अभी आप देखिए इसका तासीर 2-3 सालों में, अब जो इंटरनेट की आजादी, ग्लोबलाइजेशन, बाकी चीजें, ये फैमिली का फ्रीडम वगैरह, आप देखिए बच्चों को ये कहाँ ले जाएगा। अभी अब फेमिनिज्म की ओर हम जा रहे हैं, एथीज़्म की ओर हम अभी जा रहे हैं। अब देखिए इसके कितने मनफी असरात हमारे बच्चों पे पड़ने वाले। अभी 1-2-3 सालों में आप देखिए एक मुनज़्ज़म इस पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत बहुत दरकार है इस चीज पे। इसके लिए एक और चीज भी बड़ी जरूरी है राशिद साहब कि आपसे कहूंगा कि माँ बाप क्या करें इसमें। माँ बाप को यानी फिर सोच समझ के अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालना है कि पहले से उसके बाद जहाँ पे दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो, या कम से कम वो मकतब को पहले इंतखाब कर ले कि मकतब भी साथ में जाए और स्कूल भी साथ में जाए, या कॉलेज का, ऐसा कॉलेज तो है भी नहीं यहाँ पे जहाँ पे दीनी तालीम भी हो। क्योंकि एज अ फादर मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ दुनियावी तालीम भी, कि वो इंजीनियर भी बनना चाहिए, वो डॉक्टर भी बनना चाहिए, और साथ में इस्लामी मायार में भी वो बराबर यानी शाना बशाना चले। मुसलमान तो कम से कम बने, बुनियादी तौर पे एक मुसलमान तो हो, और कम से कम अल्लाह का तारुफ हो, बकौल आपकी अल्लाह का तारुफ तो उसका कम से कम हो। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए इसके लिए? माँ बाप और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, बच्चा तो इस्लाम पे जन्म लेता है। बिल्कुल, अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। बिल्कुल, सिर्फ माँ बाप की तरबियत या तो उसको यहूदी बना देती है या नसरानी या मजूसी बना देती है। बिल्कुल सही, माँ बाप की तरबियत का कलीदी किरदार है ना इसमें। माँ बाप अगर तरबियत याफ्ता हो तो बच्चा तासीर लेता है इसकी। हमारे माँ बाप भी बिगड़े हुए, वालिदैन हमारे बिगड़े हुए, घरेलू हालात हमारे बिगड़े हुए हैं, घरेलू निजाम हमारा बिगड़ा हुआ है, बाप झूठ बोलता है, बाप बददियानत है, बाप बद इखलाक है, इसका असर तो बच्चे पे पड़ेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा घर। माँ किचन में बैठ के पहले जमाने में तो वो तिलावत किया करती थी बावर्ची खाने में। माँ पहले जमाने में मदबक में बैठ के तिलावत किया करती थी, खाना पकाती थी तो जिक्र किया करती थी अल्लाह। बच्चों को नबियों की कहानियां सुनाती थी तो नबियों की स्टोरियां सुनाती थी। सोते वक्त उसको कम सहाबाए कराम की एक हाथ में आप पतीला ले रहे हैं और दूसरे हाथ में आपको रिमोट होना चाहिए। सही, बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, बच्चों को वो रील्स बच्चों को अवॉइड करते हैं। सही बात, उनकी तरबियत पे ध्यान नहीं रखते, उनको अवॉइड करते हैं। और ये चीज अवॉइड कैसे करते हैं, उनको फोन देते हैं। हाँ, सही बात, उनको कार्टून के साथ उलझा देते हैं, रील्स उन चीजों के साथ उनको उलझा देते हैं, और खुद ड्रामा सीरियल्स वगैरह, और इन चीजों का बड़ा तासीर होता है। ये फिल्में हैं, ये जो ड्रामा है, इनका बड़ा तासीर होता है आपकी जिंदगी। सही बात। तो इंसानी दिमाग, इंसानी ये जो दिल है, ये तासीर बहुत जल्द कबूल होता है। तो इन चीजों का बहुत मतलब मनफी तासीर हमारे वालिदैन पे पड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका मनफी तासीर बच्चों पे पड़ा। जी बिल्कुल, वालिदैन की ज़माने में यही बात मैं कहूंगा कि वालिदैन खासकर अपने बच्चे को झांकने के लिए, गुस्सा करने के लिए, कुल्लुकुम राइन, वो इस हदीस को ज़हन में रखें, वो मसऊल है। जी सही, और उनको उनकी मसऊलियत के बारे में अल्लाह जरूर सवाल करे। मसऊलियत का एहसास
खत्म हो चुका है। वालिदैन को होना चाहिए। मैं ये बद्दुआओं की बात कर रहा था, अब बद्दुआएं देते हैं बच्चों को, बुरा भला बोलते हैं बच्चों को, क्या ये माँ बाप को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ऐसा। जी, माँ बाप को चाहिए कि वो हमेशा बच्चे के लिए अच्छी दुआ जी। करें, उसके सालेह होने की दुआ करें, नेक होने की दुआ करें, उससे अल्लाह से बार बार उसके लिए दुआ करें। दुआ का बड़ा तासीर होता है। ये तो सही बात। हमारे वालिदैन क्या करते, बच्चे ने थोड़ी बहुत शरारत की तो उस पे ऐसे बरस पड़ते हैं और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको दुआएं दो, जी, उनके हक में अल्लाह से बार बार गिरविजारी करो कि अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमा। नसीब फरमा, बिल्कुल सही। माँ बाप की दुआ में ये मैं खासकर बात कर रहा था इसके मकतब की, मकतब का भी रूल होना चाहिए कि बच्चों को भेजिए मकतब में, पास में मस्जिद में। जरूरी, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिल्कुल इस्लाम एक सिस्टम है, जी। इस्लाम एक निजाम जिंदगी, इस्लाम एक निजाम हयात है। आप बच्चे को निजाम हयात से कैसे दूर रख सकते? नहीं कर सकते। नहीं रख सकते। सही बात। चारों न चार हमें मतलब दीन को अपनी जिंदगी में तो लाना ही लाना ही। माँ बाप अब कोशिश कर रहे हैं बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है। ये दीन फितरत है। सही। अब फितरत के साथ आप उलझ नहीं सकते। जी, फितरत के साथ आप उलझ नहीं सकते। सही। आपने चलना है, आपने उठना है, आपने बैठना है, अपने मामलात तय करने हैं, आपने शादी करनी, अपने बच्चे पैदा करने, उनकी तरबियत करने, वालिदैन को देखना है, जी। हमसायों को देखना है, रिश्तेदारी को देखना है। बिल्कुल सही। इसमें दीन ही आपके रह। वैसे एक मसला और भी, हमारे दोस्त और अहबाब में कुछ ऐसे भी हैं बचपन में उनको दीन के साथ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी जिस तरीके से होना चाहिए था। माँ बाप ने स्कूल में डाल दिया, छोड़ दिया, बेफिक्र हो गए, अब करने दो जो कुछ करेंगे। चलिए उन्होंने पढ़ा, जो भी किया, किसी हद तक आ गए, ग्रेजुएट हो गए या ग्रेजुएशन के दौर में है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब मोबाइल फोन हाथ में आ गया है, इंटरनेट का जमाना है। अब ऐसे ऐसे स्कॉलर्स आ रहे हैं हमारे मोबाइल फोन में कि वो इनको और बातें बता रहे हैं, अब वो नई नई बातें डिस्कस कर रहे हैं। अब वो पहली बार इंट्रोडक्शन पा रहे हैं इस्लाम का। अब इस्लाम का इंट्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है? इंजीनियर का। इस्लाम का इंट्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है? किसी डॉक्टर का। इस्लाम का इंट्रोडक्शन किसी स्कॉलर का आ रहा है। वो स्कॉलर कुछ और ही चीज बता रहा है। सही बात। वो कुछ और, क्योंकि अब फोन में, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फोन पे ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जो कि जिनकी रसाई मेरे हिसाब से हमारे जहाँ के जो उलमा हैं उनसे ज्यादा है, वो बिल्कुल अंदर घुस गए हैं। सही बात। ठीक है। अब जब वो उनकी बात आते हैं हमारे सामने पेश करते हैं, मुशाजरात सहाबा बयान करते हैं, ये हालात हैं बयान हमारी। वो आके हमारे पास, जिन्होंने बचपन से कभी दीन पढ़ा नहीं, कि किसी यानी मकतब गए नहीं, दारुल से मुसलिक रहे नहीं, आलिमों से, अब वो आलिमों से बदजन हो रहे हैं। अब वो अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर जमीयत के साथ है, या किसी और कोई भी मकतब फिक्र, किसी भी जमात के साथ है, किसी भी मकतब फिक्र के साथ है, हमें कोई इससे मसला नहीं है, लेकिन वो मकतब फिक्र को ही अब छोड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये सारे जो हैं ये दीन के ठेकेदार बने हैं, इनके अपने शॉप्स चल रहे हैं। इन बच्चों के लिए क्या नसीहत आप करना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा सवाल आपने आखिर पे किया जी। तो मैं इस हवाले से अपने भाइयों से और अपने नौजवान साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सही, जब हम बाजार से मोबाइल खरीदते हैं, सही, कोई कपड़ा अपने लिए खरीदते हैं, सही, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल खरीदना है जी। उसके बाद वो हमें हजारों मोबाइल दिखाता है। सही। उसके बाद हम बार्गेनिंग करते हैं, क्या यहाँ पे लेना सही होगा? किसी दोस्त को फोन करके कहते हैं कि मैं फलानी दुकान पे हूँ, इससे मोबाइल फोन लेना सही होगा, ये इतने रेट में दे रहा है। मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन हम उसको बता देते हैं। अगर दोस्त कहे कि ठीक है तो फिर ले लेते हैं, नहीं तो हम 50 दुकान छांट मारते हैं, कहाँ लेना है, क्या कर। एक मामूली से मोबाइल फोन के लिए जो कुछ ये करते हैं कि गूगल का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे भी देख स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। एक मोबाइल खरीदना है, इसके लिए हम मतलब हजारों ख्यालात हमारे जहन में गर्दिश करते हैं, खरीदना है, नहीं खरीदना है, महंगा मत पड़ जाएगा, स्पेसिफिकेशन इसकी जो है वो चीज वो सारी चीजें उसमें देखना है। जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो मुझे वही चाहिए कि कुछ और चाहिए। फिर वो क्या करता है, फिर दूसरे दुकानदार के पास चला, तीसरे के पास। एक छोटे से जैकेट के लिए हम 10 दुकान छांट मारते हैं। टाइम फिर वहां पे वक्त नहीं रहता। दीन ले रहे हो भाई, एक दीन आप किसी भी कैसे जन्नत और जहन्नम का आप सब अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि वहां की कामयाबी वो दायमी है।
وہاں کا عذاب وہ دائمی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہاں کی کامیابی کو آپ دنیا کی کامیابی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. دنیا کی کامیابی کا معاملہ ہے کہ بندہ آج کامیاب ہو کل ناکام ہوگا، آج ناکام ہو کل کامیاب ہوگا. وہاں کی کامیابی کا معاملہ ہے کہ آپ کامیاب ہوئے تو ہوئے، ناکام ہوئے تو ہوئے. جو کامیاب ہوا ایک بار کامیاب ہو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جو ناکام ہوا ایک بار ناکام ہوا ہمیشہ کے لیے ناکام. تو آپ دین لے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں دین کس سے لے رہا ہوں. ایک معمولی سے موبائل کے لیے، ایک معمولی سے جوتے کے لیے، ایک معمولی سے جیکٹ کے لیے آپ نے 50 دکان چھانٹ ماری. دوستوں سے بات، کسی اور سے بات، ایکسپرٹ جو اس کے ہیں اس سے بات، گوگل کا سہارا لے رہے ہیں آپ کی یہ صحیح رہے گا میرے لیے نہیں رہے گا. آپ دین لے رہے ہیں اور کسی بھی انجینئر سے لے رہے ہیں، صحیح کسی بھی نامدی سے لے رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں، آج کا علم ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے، آپ دین کس سے لے رہے ہیں. یہ بندہ جس سے آپ دین لے رہے اس نے خود دین کہاں سے لیا، دین کہاں سے لیا. تو سند کا معاملہ کیا ہے ہمارے یہاں. آپ نے حدیث پڑھی کس سے پڑھی، جس سے آپ نے پڑھی اس نے کس سے پڑھی، اور جس نے اس سے پڑھی اس نے کس سے پڑھی. تو یہ چین کیا ہے پھر. یہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جس سے آپ دین لے رہے ہو اس شخصیت کی ذہانت کا معاملہ کیا ہے، اس کے حلم کا معاملہ کیا ہے، اس کے تقوی کا معاملہ کیا ہے، اس کی یادداشت کا معاملہ. یہ ساری چیزیں تو دیکھی جاتی ہے اس میں. کوئی دین کے معاملے میں آپ اتنا مطلب گر کیسے جاتے ہو کہ آپ کسی سے بھی دین لے رہے. وائنڈ اپ کریں گے ہم صاحب کی وہ، لیکن یہی جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ غامدی ہو، چاہے کوئی بھی اسکالر ہو، غامدزم ہو رہا ہے، انجینئرزم ہو رہا ہے، یہ لوگ بھی تو قرآن اور حدیث کو پیش کر رہے ہیں آگے جا کے. قرآن اور حدیث لوگ یہ بھی آ جاتے ہیں، وہ تو قرآن ہی بتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے خوارجوں کے حوالے سے کیا ہے. آپ ان کے مقابلے میں کیا خود کو محسوس کرو گے کہ ہم کوئی عبادت ہی نہیں کرتے. صحابہ کے بارے میں بات ہے، صحابہ کو کہا گیا کہ خوارجوں کے مقابلے میں آپ خود کو محسوس کرو گے کہ ہم ان سے قرآن پڑھنے والے زیادہ نہیں، ان سے عبادت گزار زیادہ نہیں، لیکن ہے وہ جہنم کے کتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. خوارج تو جہنم کے کتے ہیں، لیکن صحابوں کو کہا جب آپ ان کی عبادت دیکھو گے تو آپ کو لگے گا ہماری عبادت کے مقابلے میں کچھ نہیں. صحیح. تو یہ بالکل صحیح، بڑا مدلل جواب تھا بشیر صاحب آپ کا. تو آخری میں کوئی ہمارے وادی کے جتنے بھی جوانان ہیں، جتنے بھی لوگ ان کے نام کی کوئی نصیحت کرنا چاہیے. نصیحت تو بس اتنی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، بالکل تقوی رکھیں، پھر سر والعلن، تنہائی میں تنہائی اپنی پاک رکھیں. کیونکہ آج کل گناہ کرنا آسان بہت زیادہ ہو گیا، اور گناہ تک رسائی بہت آسان ہو گئی. کوئی بھی گناہ کرنا چاہو آپ صرف ایک کلک پہ دور. بالکل گناہ تک آسانی بہت زیادہ، گناہ تک رسائی بہت آسان ہو گئی. گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا. گناہ کے لیے آپ کو ہزاروں راستے ملتے ہیں، نیکی کے لیے ایک راستہ بھی نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. بالکل بس آپ تقوی کے راستہ کو اختیار کریں، نیکی کے راستے کو اختیار کریں. گناہ تک رسائی کے جو یہ آسان راستے ہیں نا ان کو چھوڑیں، تنہائی اپنی پاک رکھیں. بس یہ میری گزارش ہے. جی جزاکم، تنہائی کو پاک رکھنا بہت امپورٹنٹ. جی جزاکم اللہ مبشر ویری صاحب. یہ تھے ہمارے معزز و مکرم مہمان مبشر احمد ویری صاحب. ہم ان کا بہت بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے کم نوٹس پہ ہمیں اپنا بڑا قیمتی وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ہمارے علم میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے. اور سب سے بڑی بات یہ دینی کاوش ہے ایک چھوٹی سی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ میں مقبول معروف کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.